All right. Okay, class. So today we will discuss more interview questions and doubt solving session on list or the topic which we have covered. तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी में क्या अंतर है. You write something about shallow copy first, then I will discuss in detail. A shallow copy creates a new object, but it does not create copy of the nested object within it. Instead, it simply copy the memory address of those nested objects. Python has built-in copy module. एक copy module है जिसके थ्रू हम shallow copy कर सकते हैं, right? So now let's take an example. Let's say आपके पास एक L1 है. इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं A, B, C. इन एक और लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट है 100 and 200. Another list inside one list. Right? तो अगर मैं शैलो कॉपी करूंगा, आई यूज इम्पोर्ट कॉपी, ये एक मॉड्यूल है. इसका यूज करके आई कैन क्रिएट अनदर लिस्ट. लेट्स से L2 इक्वल्स टू कॉपी डॉट कॉपी. दिस मॉड्यूल हैज दिस फंक्शन एंड पास योर L1 हियर. तो ये क्या करेगा, एक नया रिप्लिका L1 का, लिस्ट का एक नया रिप्लिका बनाएगा और वो L2 में कॉपी कर देगा. नाउ इफ आई प्रिंट L1 and print L2. So the output is ABC 100 200 ABC 100 200. Means you have copied the entire list. But what about the nested list? So let's suppose if you do change in L2 index of 0, मैं एक ही जगह कर देता हूँ, let's say K, right? तो मैंने L2 में चेंज किया है. If I print again L1 and L2, तो आउटपुट में क्या आएगा, L2 चेंज होगा, L1 चेंज नहीं होगा. करेक्ट. लेकिन अगर मैंने L2 के इंडेक्स 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स है ये नेस्टेड लिस्ट, इसके अंदर कोई चेंज कर दिया, तो इंडेक्स एट 3, देन इंडेक्स ऑफ नेस्टेड लिस्ट लेट्स से 0, तो मैंने 100 की जगह कर दिया 500. राइट. चेंज किसमें किया है, L2 में. राइट. एंड नाउ इफ आई प्रिंट L1 एंड L2, सी द प्रॉब्लम इज L1 आल्सो गॉट चेंज. तो आपने कॉपी तो किया है लेकिन ये शैलो कॉपी हुआ है, ये डीप कॉपी नहीं हुआ है, यानी कि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ है. दैट इज द प्रॉब्लम इन शैलो कॉपी. ऑलराइट. नाउ डीप कॉपी का डेफिनेशन लिखते हैं. अ डीप कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट. डीप कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट and recursively copies every nested object found in the original. So in deep copy, it copies everything, your entire list, included all nested or recursive data. If your L1 is, again I'll make the same, L1 equals to, this is your list, right? L2 equal to copy dot deep copy. Okay, this is the function, and here you pass your list L1. It means L2 will have the complete replica of L1. There will be independent L1, L2 pointing to different addresses. So now if you do any change in L2, let's say, let's print it first. L1 print L2. If you see here, this is ABC
100 200 ABC 100 200. Now same operation we will perform here. We will do change in L2 and we'll see if any impact on L1. So L2 at index 3, right? 0 1 2 3. At index 0, I'll make it, let's say, 2000. Right? And if I print again L1 L2, you see only L2 has changed. L1 पे कोई impact नहीं आया है. Whenever you use list और आपको copy बनानी है, उसकी replica बनानी है, तो always use deep copy to avoid the conflicts. नहीं तो पहले वाले में भी impact आएगा अगर shallow copy किया है. Let's suppose आपके पास एक list है data equal to 100 200 300 400 500 like this. ठीक है. Now I want to iterate each element one by one. Let's say मेरे को पहले 100 प्रिंट करना है, फिर 200 प्रिंट करना है, 300 प्रिंट करना है, 400 प्रिंट करना है, 500 प्रिंट. तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप. अभी मैं लूप को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, हम आगे पढ़ेंगे लूप को डिटेल में, बट जितना यूज कर सकते हैं उतना मैं बताता हूँ. ठीक है. सो लूप सेज इट स्टार्ट विथ फॉर इज योर कीवर्ड. देन you need to define your iterator जो उसको iterate करेगा one by one, right? Let's say value, right? कोई भी एक variable, it is your user defined variable. In is a operator. Okay, this is again a keyword. इसका काम है वो उसके iterator को help करता है to identify into iterable. Iterable is nothing here, is list and then data. So data is your list. And whenever you use for loop, always remember there should be a tab space. Tab space रहेगा तो ही वो काम करेगा. The reason is tab space defines the scope of loop, right? तो यहाँ पे मैंने print किया value. If you see, output is one by 100 200 300 400. तो इस तरीके से वो simple loop हम लगा सकते हैं and each element को we can iterate using for loop. Okay, all right. So the question is find sum of all elements, right? तो सबसे पहले हमारा एल्गोरिदम रहेगा कि जिसमें हम सम करना है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं. लेट्स से रिजल्ट इक्वल टू 0. स्टार्ट विद 0 एंड देन अप्लाई लूप और लेट्स से v इन डेटा, एक वेरिएबल है v फॉर वैल्यू, राइट? देन इन रिजल्ट we can say result equal to result plus v, and then go outside of the loop and say print result. This is very simple way to solve it. Right? एक वेरिएबल लिया मैंने, उसके अंदर वन बाई वन ऐड करता चला गया. एंड दिस कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो, लाइक रिजल्ट को यहाँ ना रख के यू कैन यूज लाइक दिस प्लस इक्वल्स टू वी. द स्टेटमेंट्स आर सेम. अगर आप रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस वी करोगे वो भी एक ही बात है. If you write in this way, result plus equal to v, this is also same. Okay. So the next way is you can use comprehensions. ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन. उसमें क्या होता है, एक ही लाइन में हम पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं अगर वो सिंगल लाइन का सिंटैक्स है. यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर लूप के बाद एक ही लाइन है. अगर दो लाइन तीन लाइन चार लाइन है तो फिर हमको यूज नहीं कर सकते उसे कॉम्प्रहेंशन को. वो कैसे होता है ले ये बता दो. ठीक है. तो let's suppose I want to find the sum of all elements. Right. तो comprehension कैसे काम करता है? It returns a list. So let's say this is my L2 and you use square bracket क्योंकि list comprehension है तो एक list return करेगा, obvious है. Then
लेट्स से वैल्यू जो रिटर्न करानी है फॉर वैल्यू इन डेटा, राइट। तो ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉर लूप लगा रहा है, राइट। अगर मैं इस L2 को एज इट इज प्रिंट कर देता हूँ तो देखो एल डेटा और L2 दोनों एक जैसे ही हो दिखेंगे, ठीक है, कोई अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन एक्चुअल हमने यहाँ ऑपरेशन क्या किया है, फॉर लूप लगाया है डेटा के ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर, और उसको वैल्यू मिला है, ठीक है। इट मीन्स वी आर आइटरेटिंग द लूप ओवर दिस। अगर मैं इसको एक और कंडीशन इसमें लिख देता हूँ, लेट्स से इफ वैल्यू, लेट्स से वैल्यू रिमाइंडर बाय 2 इक्वल इक्वल 0, एंड इस डेटा को मैं थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि ये 0 ही बन जाएगा इस केस में। आई जस्ट चेंज इट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो इसको हम कर देते हैं लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो व्हाट इट डज एग्जैक्टली, वो कह रहा है कि आपने लूप लगाया डेटा के ऊपर, 1 2 3 4 5 मिला मेरे को, राइट। लेकिन ईच एलिमेंट के लिए आई एम पुटिंग अ कंडीशन ऑल्सो। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर fetching only those values, even values, right। एक जैसे यहाँ पे लूप लगा फॉर वैल्यू इन डेटा, तो मेरे को वैल्यू मिला, पहली बार लूप लगा 1 मिला, वैल्यू यानी 1 रिमाइंडर बाई 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगले वाले चला गया फॉर वैल्यू इन डेटा, दूसरा मिला 2, 2 रिमाइंडर बाई 2 इक्वल टू 0, कंडीशन बन गई ट्रू, तो मेरे को वैल्यू मिली 2, जो यहाँ पे एक लिस्ट है। एंड अगर मैं इनका सम लगा देता हूँ, सम, तो मेरे को सम मिल जाएगा इनके इवन वैल्यूज का। तो जो इवन मेरे पास में इवन एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, उनका सम हो गया। तो इन वन लाइन you can do lots of things, right? You can put a condition, you can do iteration, you can do sum. So these kind of syntax will be used in AI ML applications regressively. So now the question for you is, you need to use list comprehension and create squares. For example, you have L1 equals to 1 2 3 4 5. The output should be 1 4, right, 9 16 25। तो आपको लिस्ट कॉम्प्रेंशन यूज करके ये निकालना है। दैट इज वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूव नेगेटिव वैल्यूज। तो जब भी हम एआई एमएल के बारे में बात करते हैं तो मशीन लर्निंग में एक टॉपिक है डेटा क्लीनिंग। तो लेट्स सपोज आपके पास कुछ डेटा है जिसमें देर आर फ्यू एलिमेंट्स 2 3 -7 -6 4 -7 6, right, 10, something like that. What you need to do is you need to remove all negative values, only positive value should be there, and you need to use list comprehension. One problem we will understand this one. This will help you to understand. The problem is you need to convert only even numbers to square. You have a data and data looks like this: 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आउटपुट आएगा वो इवन नंबर्स का स्क्वायर होना चाहिए। इट शुड बी अ लिस्ट, लेकिन इवन नंबर्स का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम किस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रहेंशंस का यूज करके कर सकते हैं इसको। सो लेट्स से यू हैव रिजल्ट इक्वल्स टू, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन मैंने शुरू किया, राइट, एंड इफ आई से लेट्स से x फॉर
x in data। तो ये क्या करेगा, सारे इटरेशन करेगा, डेटा आपको दे देगा, रिजल्ट विल बी सेम इफ x मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0। क्या दे दिया आपको, इवन नंबर। जब इवन नंबर्स आपको मिल गए तो यू कैन डू x इंटू एक्स, यानी उसी का उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन प्रिंट रिजल्ट is the output. This is the beauty of list comparison. 4, 16, 36, 64. So this is the top most questions asked in interview. Flatten a 2D list. So the question is you need to flatten 2D list. So let's say if you have a list like matrix, mat, uh, list inside list 1, 2, 3, right? And 4, 5, 6. You have two-dimensional list. Now the output should be in one list having single layer, means the output should be like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this। ठीक है, तो इसको हम लोग लिस्ट कॉम्प्रेंशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आउटपुट और लेट्स से आउट वेरिएबल है, लिस्ट कॉम्प्रेंशन मैंने शुरू किया, लिस्ट बनाया, ठीक है, मैंने लिखा लेट्स से num for num in met। तो अभी क्या करेगा, अभी तो ये पूरा का पूरा दे देगा, एक नम मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, राइट, लेकिन एज इट इज दे देगा। अगर मैं एक और लूप लगा देता हूँ तो लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ रो, फॉर रो इन मैथ। अब मेरे को एक रो मिल गया पूरा, इसके अंदर मैं एक और लूप लगा दूंगा। अब वो लूप किसके ऊपर लगेगा, फॉर नम इन रो, ठीक है। तो ये जो लगाया है फॉर रो इन मैट, तो इससे तो मेरे को रो मिल गया, उस रो से मैंने एक और लूप लगाया रो के ऊपर, और जो एक्चुअल मेरा नम था, ये जो वेरिएबल है, इसको डेटा मिल गया। तो ये हो गया टू डायमेंशनल में फॉर के अंदर फॉर लूप लगाया है, प्रिंट आउट। सो इफ यू सी द आउटपुट इज 1 2 3 4 5 6 फ्लैटन एरे। इसको थोड़ा और तोड़ देता हूं मैं टू एक्सप्लेन प्रॉपरली। अगर मैं लूप यूज करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से नॉर्मल केस में कॉम्प्रेंशन यूज नहीं कर रहा, नॉर्मली लूप लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा रिजल्ट इक्वल्स टू, लेट्स से एक लिस्ट बना दी, देन आई सेड फॉर रो इन मैट, फिर मैंने एक और लूप लगाया फॉर लेट्स से एलिमेंट और वी इन रो, क्योंकि दोबारा से एक और लिस्ट मिला है मेरे को, देन आई से रिजल्ट dot append, and what I'm appending, value, and if I print result here, this is also same, right, the output is same, correct. Now instead of writing 4 lines for this syntax, we can do it in single line. Same thing I'm doing here also. So this is the way you can solve two-dimensional array problems. Okay, so this is the assignment. What is time complexity and memory complexity? Spend some time on it. In next lecture, we will discuss in detail, एंड हम देखेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर किस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज। जब भी आप इंटरव्यू में सॉल्यूशन सॉल्व करके उसको जब दोगे या समझाओगे इंटरव्यूअर को, तो यू शुड एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे more into time complexity and memory complexity, some interview questions till list, and we will discuss about tuples in dictionary. Thank you.